Hi, my name is Tito Matthew, and I met Roshan Martins 6 months back when I got the position from the Ranwal Group. Uh, it was one of my friend who recommended me to Roshan, and I watched some of his videos in YouTube. And then after consideration or after waiting for 1 week, I approached him, and then we started the discussion. Once we discussed everything, the first work what we did is he asked me my recommendation so that he can capture in his 3D design what he's supposed to do. So I think he was open to any of my suggestions, but at the same time he also gave me a better suggestions what could look better in this the entire planning. Once that was done, I met the 3D interior guy who's one of his teammate. He also gave me further suggestions, and I think within 3 days he was ready with all the recommendation. It was all coordinated in WhatsApp on a timely basis. He sent me lot of recommendations for each and every room, and out of that I selected few of them which I liked, and then Roshan started the initial work. Once we started with the work, the main thing was what kind of material I need, which means what kind of wood I need, what kind of laminates I need. Then Roshan took me to multiple places so that I should get what I like, not what Roshan likes. So he was open for that also, and then eventually within 1 week we were able to finalize what kind of tiles I need for my kitchen, what kind of laminates I need for my kitchen. In fact, what kind of locks I need for each of my wardrobe. I think up to that level he was with me for the entire visit. We were spending almost 2 to 3 hours in each shops, and he was there with me to start with that. I think that was one of the best piece he did, because I don't think so. I have met anyone like him who was open to all kind of changes and recommendations up to this detail level conversations. Once we met, then I met his entire team. Before we started any work, I met his carpenter, I met his POP guy, I met his electrician, I met his painter. I think all these people contributed to this house. It's not only Roshan and the 3D person, but once we did had a discussion, they know what I wanted, and eventually when we started the work, the carpentry work was the first part where we initiated the. So I think one of his team member who's Shatru, the chief carpenter, he used to send me the pictures after each and one wall was designed, and he made it clear so that I will like it. So he sent me all the pictures on a weekly basis. If I felt that this is good, then he went and he continued. But at the same time, he also recommended me that this design will not look good in this wall, this design will not look on other wall. So we used to think again, and then we used to change according to plan. But the main part was even the worker or even the carpenter guys, they was completely dedicated. They gave me a timeline that within 30 days this entire furniture or entire bed will be completed, and that was the timeline was met. I don't have to worry about it. After that, the painting and POP guys also did the same thing. Eventually only 1 month I came and I saw my work with my eyes. I think that was all good, but then due to my work constraint and my family, I was not able to visit quite frequently. So Roshan and his team proactively used to send me everything every 3 days, every detail of work they completed, and they used to tell me what has been done, what is needed, what is not needed, and so on. So I think it was planned quite well from start to the middle stage. After middle stage, the intensity of work increased. When I say intensity, which means the initial work was done of putting the wood and everything. Now the main work was regarding laminates, because if you're putting laminates, you need to wait for at least 2-3 weeks so that it gets thick, and you get the details out of it, because most of the work, interior work I have seen, after few weeks it starts coming out. So Roshan and his team, they used to wait for the entire work to happen until 3-4 weeks the things are done, so that they wanted to verify whether things are getting out of hand or not. But I think it went quite well. Everything was done in a slow pace, because that was my recommendation, and Roshan has lot of
has lot of work simultaneously, but he made sure that every house that he is looking into, he is monitoring, he is supervising since morning till evening. He used to come at least twice in a day on each site, especially this site also, to see what did I finalized, was it committed or not. So every time he used to come, he used to send me the pictures like, sir, this is completed, do you like this or not? So if I said yes, I think then the next work would start. So eventually it took me 5 months, but that is what I wanted. But till date, I think it's been 5 days now, I have shifted to this house. I don't have any complaints. And there was one issue with one light going on. I called that guy because there is a after sales service, just like what we have in car when we purchase. There is so even Roshan has that kind of scheme. So if you think something went wrong, you just need to call Roshan and he will send someone, and you don't have to pay anything for that. So that is the confirmed warranty from Roshan. And the work, if you see, you might have already seen, or you are going to see this video, you will definitely see the detailing of work. You will not see a loose end anywhere. That's how the kind of team he has, it's so brilliant. I have the personal numbers of each one of them. So if I have a problem, I just call them. I mean, I don't have to call Roshan also. They will give you a timeline when they are going to come, and they, like, maybe within 24 hours, within 48 hours, but they'll definitely give you a timeline. So you can wait, and they will monitor the product. If something has gone wrong, they will definitely change it on their own cost. So I would recommend Roshan. And the final conclusion which I wanted to tell you before the end of this session is that you can blindly trust him, because just like I mentioned, 3 months I was not on this site. I was worried, but when I got the handover, my doubt was completely clear. Nothing was a problem. Even the handover session was quite good. He made sure that every corner of this house is cleaned. There is not a single cement, or there is not a single furniture which is not unfinished. So before I end, I would say that Roshan is one of the best interiors I have worked in so far in my 2-3 house experience, and in future also I would definitely go ahead with him. Thank you for this. मेरे को मेरा रूम बहुत अच्छा लगा. ये हमको मिला गॉड का ब्लेसिंग से, रोशन भाई मिला, बहुत अच्छा काम किया. ऐसा इंटीरियर देखे सब जन फोटो निकाला उसका. पूरा लोग का परसों आया तो सब देखे एकदम, ये कोई इंटीरियर कौन किया पूछता था, उसका नाम पूछता था. वेरी नाइस सब जन बोला. सबको बहुत अच्छा लगा. एक लोग बोला है हमको इधर आए तो बहुत हैप्पी हो गया हम लोग. ये मैं रियली बोलते, सबको बहुत अच्छा चीज़ पूरा जगह में लगाया. पूरे शोकेस का ग्लास एकदम मटेरियल वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा मीन्स ठंडी एकदम सोने के लिए वेरी नाइस रूम है. फर्स्ट रूम पूरा टीम बहुत अच्छा प्यार से उसके साथ किया, वो भी बहुत प्यार किया. सब अच्छा लोग हैं, हमको बहुत अच्छा लगा. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, गॉड ब्लेसिंग. और उसको आगे बहुत अच्छा होएगा. सब जन पूछता था, सबको अच्छा लगा बोलेगा. तो ये हमारा डोंबिवली चर्च, सेंट मेरीज चर्च वाला सबको बहुत पसंद हो गया. हम वेरी हैप्पी, फैमिली वाला सब हैप्पी. ये घर दे के ये गॉड का ब्लेसिंग. हेलो फ्रेंड्स, रोशन मार्टिन्स फ्रॉम रोशन इंटीरियर्स. आज हम आते हैं रूनावल का बिगेस्ट कारपेट में 3 BHK टावर नंबर 1 में 1403 में. तो ये बिगेस्ट कारपेट जो है आज रूनावल गार्डन्स का, उसमें हमने बहुत सारा काम किया. तो मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखिए. आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. मैं हमेशा बोलता हूं प्रीमियम और अफोर्डेबल में दोनों में डिफरेंस क्या है. प्रीमियम ये है कि आज जो हम लोग ये जो प्लाई यूज करते हैं, ये फुल मरीन प्लाई है. 710 फुल वाटरप्रूफ प्लाई विद बॉइलिंग वाटर में. अफोर्डेबल क्या है? अफोर्डेबल मतलब हम लोग जो प्राइस डालते हैं आपको, वो कमर्शियल का रेट डालते हैं विद वाटरप्रूफ प्लाई में. तो ये प्रीमियम विद अफोर्डेबल प्राइसेस में का डिफरेंस है. और ये जो रोशन इंटीरियर्स को चॉइस करने का आपको क्यों सबसे बेटर बेनिफिट है, ऑल इन प्राइस में है. सनमाइकास, एसेसरीज, डिजाइन्स ऑल इन प्राइस में.
तो इसमें कस्टमर्स को बेनिफिट क्या है, अपना मर्जी का चॉइस करने के लिए आता है। हमारा फुल एक 3D टीम है जो आपको हेल्प करता है आपका डिज़ाइन चॉइस करने के लिए और आपका ड्रीम होम बनाने के लिए। तो अब आज हम चालू करते हैं ये 3 BHK फ्लैट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रीमियम विद एफोर्डेबल प्राइजेस, हैसल फ्री इंटीरियर्स करना है, एफोर्डेबल करना है और प्रीमियम दिखाना है विद एफोर्डेबल प्राइजेस में, यू कैन ऑलवेज चॉइस रोशन इंटीरियर्स। तो हम अभी चालू करते हैं शू रैक से। शू रैक में हमने यहाँ पे वॉलपेपर यूज़ किया, यहाँ पे हमने सीटिंग, कंफर्टेबल सीटिंग विद शू रैक्स के लिए यहाँ पे जगह था तो इसलिए हमने 3 डोर शू रैक्स बनाया, यूनिक होल्स बनाया, प्रीमियम हैंडल्स बनाया ब्लैक शेडल में और ये फुल एक शू रैक्स बनाने की कोशिश की। यहाँ पे हमने हैंडल्स, यूरोपा का लॉक्स, प्रीमियम डिज़ाइंस, 304 स्टील, लाइट्स, एनॉक्स फिटिंग्स का, GM का बटन्स, हमारा स्टैंडर्ड ये 6-in-1 लॉक सिस्टम। यहाँ पे जो सनमेकर्स डाला, गोदरेज का लॉक सिस्टम, हमने कैमरा स्विचेस दिया। यहाँ पे प्रीमियम सामने पूरा सनमेकर्स को पैनलिंग किया और ये फुल 1 सेट सेफ्टी डोर का हमने बनाने की कोशिश किया। ये है 3 BHK जो आपको अभी दिखा रहा है। ये है अभी लेटेस्ट लिविंग रूम से। अभी जैसे हम लोग एंटर करते हैं लिविंग रूम में, लिविंग रूम से हमने जो एंटर किया मेरा सेफ्टी डोर का ये इनसाइड डोर्स, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं इनसाइड डोर्स का, ये डुअल कॉम्बिनेशन ऑफ सनमाइकास, टी पट्टीज 304 स्टील और ये फुल वॉल पैनलिंग। ये जो आप वॉल पैनलिंग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे वॉल पैनलिंग लिया है, फुल वाटरप्रूफ प्लाई किया है विद सनमाइकास प्रीमियम्स दिया है। ये डोर जो है ये हमारा फर्स्ट बेडरूम सेट है। यहाँ पे हमने प्रीमियम हैंडल्स विद टी पट्टीज और ड्यूएल्स डाला है। अभी ये साइड से आप देख रहे हैं तो ये अभी का लेटेस्ट राफ्टर्स और यहाँ पे हमने वन ऑफ द बिगेस्ट टीवी यूनिट बनाने की कोशिश किया फुल। ये टीवी यूनिट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यहाँ पे हमने डी डेकोर के पर्दे, AC पैनल्स, टीवी यूनिट विद टी पट्टीज, अभी का लेटेस्ट टेक्सचर डिजाइनर सनमाइकास। यहाँ पे हमने की होल्डर यहाँ पे बनाने के की होल्डर यहाँ पे बना के लिया। तो यहाँ पे की होल्डर्स, ये जस्ट फुल पैनल विद बॉक्सेस डाला और ये एक फुल सेट बनाया, सॉफ्ट क्लोजर्स बनाया, हैंडललेस ड्रावर्स, सॉफ्ट क्लोजर्स बाय ओजोन फिटिंग्स डाला, टीवी यूनिट्स यहाँ पे डाला। यहाँ से एंटर करेगा तो ये फुल एक सेट हमने टीवी यूनिट बनाने की कोशिश किया। और AC पैनल्स में भी हमने जॉइंट्स आते हैं, इसलिए यहाँ पे जॉइंट्स में हमने टी पट्टीज डालना चालू किया। डी डेकोर के पर्दे, यहाँ पे बालकनी है तो बालकनी आपको आगे का इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे एक L शेप कॉर्नर था तो L शेप में हमने यहाँ पे फुल पैनलिंग किया, राफ्टर्स डाला, डुअल कॉम्बिनेशन जो हमने फुल सेट यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे हमने टेक्सचर सनमाइका का यूज किया, सोफा सेट किया, कंफर्टेबल सिटिंग। यहाँ से एकदम ब्रॉडवे पिक्चर है, हम लोगों ने यहाँ पे 65 इंच का टीवी। यहाँ पे ये साइड में हमने देखा तो यहाँ पे हमने एक सोफा डाला, यहाँ पे कंफर्टेबल सोफा। तो यहाँ पे 3+1 4 जन कंफर्टेबली यहाँ पे सीइंग देता है और यहाँ से एंटर करता है। अभी यहाँ से एंटर करते समय ये हमारा एंटर करने के टाइम ये हाईलाइटर वॉल्स में आता है। तो हाईलाइटर वॉल्स हमने यहाँ पे फुल यूरोपियन वॉल्स मोल्डिंग्स लगाए। ये डाइनिंग टेबल दिखा, 5 सीटर डाइनिंग टेबल्स दिया और ये हमारा हाईलाइटर वॉल। जैसा आप इनसाइड आते हैं, फर्स्ट हमारा ये हाईलाइटर प्रोफाइल डोर्स विद ड्रावर्स, सॉफ्ट क्लोजर्स, लॉट ऑफ स्टोरेज और यहाँ पे हमने एक ब्यूटीफुल बुक शेल्फ्स विद प्रोफाइल लाइट्स, इनसाइड यूनिट्स, ये फुल एक कॉम्बिनेशन बनाया। ऊपर पूरा सिस्टम दिया हमने स्टोरेज का, प्रोफाइल लाइट्स लगाया और ये डिजाइनर POP जो आप यहाँ पे ब्यूटीफुल POPs यहाँ पे देख रहे हैं विद प्रोफाइल लाइट्स डाला है। यहाँ पे हमने स्पॉट लाइट्स दिया, 2 फैंस दिया हमारा GMs का और यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स दिया, GM लाइट्स डाला यहाँ पे विद 2 years वारंटी। यहाँ पे आपने नोटिस किया रहेगा तो ये अभी पैसेज एरिया में आया, तो ये सब हॉल का एरिया में ही हमने आपको फुल वीडियो दिया है। यहाँ पे हमने कर्टन्स भी यहाँ पे एक विंडो था, यहाँ पे हमने कर्टन्स दिया, यूजेबल कर्टन्स, 304 स्टील हमने यहाँ पे इनविजिबल ग्रिल्स लगाया पूरा फ्लैट्स में। और यहाँ पे जो लुक आया है, यहाँ से हमने फुल ये वन थीम करने के, आपने फुल एक लिविंग रूम ने देखा रहेगा तो हमने फुल एक वन थीम डाला है। ये फुल टेक्सचर सनमाइकास विद गोल्डन टिप पट्टीज। किचन में हमने यहाँ गजेरिया का ब्रांड्स और यहाँ पे हमने स्लाइडिंग डोर्स जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये फुल एक पैसेज का लुक देखिए। पैसेज में आने के बाद हमने फुल पैनलिंग किया, डोर्स का सनमाइकास चेंज किया,
टी पट्टीज लगाया, ये फुल एक वन सेट दिया। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट, मास्टर बेडरूम, ये सेकंड मास्टर बेडरूम, ये फुल सेट हमने पैनलिंग करके इसका डुअल कॉम्बिनेशन डाल के हमने डबल टी पट्टीज डाल के लिया। तो ये फुल एक लुक पैसेज का। लिविंग रूम में ये बॉक्स बीच में आ रहा था तो हमने यहाँ पे इसको स्ट्रेचेबल डाला, तो ये एकदम फुल वॉल पैनलिंग्स किया। यहाँ पे ट्रिपर्स का था, सॉफ्ट क्लोजर्स डाला। तो यहाँ पे भी हमने वाईफाई के लिए सिस्टम्स के लिए पॉइंट्स बनाए। ये भी हमने स्टोरेज बनाया। यहाँ पे ये भी जैसा वहाँ पे किया था ये भी स्ट्रेचेबल है। यहाँ पे एक किचन का यूनिट बनाया। ये ब्यूटीफुल पीओपी का डिजाइंस विथ प्रोफाइल लाइट्स और ये फुल सेटअप वन सेट और एक वन थीम करने की कोशिश किया हमने, डुअल कलर कॉम्बिनेशन ऑफ सनमाइकास में। अभी हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे जो है किचन। तो किचन में हमने जब स्टार्ट किया तो हमने यहाँ पे फुल किचन मॉडिफाइड किया। कजेरिया का ब्रांडेड ग्रेडेंट्स लगाया, स्लाइडिंग डोर्स लगाया, कॉम्बिनेशन ये लगाया, टी पट्टीज लगाया। यहाँ पे हमने एक्रेलिक लगाया, एक्रेलिक किचन यहाँ पे फुल मॉडिफाइड किया। कजेरिया ग्रेनेट्स लगाया, प्रोफाइल लाइट्स लगाया, प्रोफाइल शटर्स लगाया, मल्टी फंक्स जिंक्स लगाया और ये फुल एक थीम हमने एक्रेलिक का यहाँ पे बना के लिया। तो यहाँ पे जो है 304 सील स्टॉलिस का, सॉफ्ट क्लोजर्स डाला, हितिच का, प्रीमियम हैंडल्स डाला, प्रोफाइल डोर्स लगाया। ये एक डिफरेंट थीम हमने यहाँ पे यूनिक डिफरेंट किचन करने की कोशिश किया। प्रोफाइल डोर्स दोनों साइड्स में दिया। यहाँ पे हमने मल्टी जिंक्स दिया, एक्रेलिक लगाया 2 mm का, सॉफ्ट क्लोजर्स डाला ओजोन फिटिंग्स का, पुल आउट्स डाला हितिच का, फुल सॉफ्ट क्लोजर्स डाल के हमने यहाँ पे डाल के लिया। बालकनी है, बालकनी में हमने इनविजिबल ग्रिल्स लगाया और कपड़ा सुखाने के लिए ये डाल के लिया। ये फुल सेट यहाँ पे हमने टाइल्स भी पूरा चेंज किया और कजेरे का ग्रेनेट्स लगाया। ये फुल सेट और यहाँ पे जितना ट्रॉलीज डाल रहा है फुल सेट हमने यहाँ पे ट्रॉलीज डाल के एक यूजेबल किचन आपको स्पेशियस किचन बनाने की कोशिश किया। अभी हम किचन में देखेगा तो हमने वो साइड में भी स्लाइडिंग के ऊपर पैनल किया, तो यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाया। इन्वर्टर हमने यहाँ पे रखा तो उसके लिए हमने ये स्पॉट स्मॉल होल्स वाला प्रोफाइल्स लगाया, शटर्स लगाया, ब्रांडेड शटर्स इजी टू ओपन और मल्टीपल यूज करने के लिए यहाँ पे शटर्स बनाया। ट्रॉलीज लगाया एकदम कंफर्टेबल ट्रॉलीज में, 304 स्टील, लॉट ऑफ स्टोरेज। ये किचन में हम बना रहे हैं तो फुल लॉट ऑफ स्टोरेज, जितना स्टोरेज यूज करने का उतना कंफर्टेबल स्टोरेज यूज किया। यहाँ पे भी 304 स्टील, सॉफ्ट क्लोजर्स लगाया हितिच का। तो ये फुल एक मल्टीपर्पस किचन जो हमने कजेरे का ग्रेनाइट चेंज किया, कजेरे का टाइल्स लगाया, प्रोफाइल डोर्स लगाया। यहाँ पे जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं मटेरियल सब ब्रांड मटेरियल्स लगाया, विद वारंटी है। किसका 1 ईयर वारंटी है, किसका 2 ईयर्स वारंटी है, किसका 5 ईयर्स वारंटी है। 1 ईयर सर्विस रोशन इंटीरियर से टोटली फ्री है। कुछ भी तकलीफ रहेगा तो हम लोग उसको सर्विस देते हैं और उसके बाद भी रहेगा तो एक नॉमिनल चार्ज देते हैं कस्टमर पर्सन आने का और पर्सन जाने का। तो कभी भी आप ट्रस्ट कर सकते हैं रोशन इंटीरियर्स को। ये फुल एक ब्रांड किचन बनाने का हमने कोशिश किया। थैंक यू। अभी आते हैं हम फर्स्ट बेडरूम में। बेडरूम में जैसे एंटर किया तो फर्स्ट लुक आता है ये मेरा यूरोपियन मोल्डिंग्स, फ्लोटिंग पैनल विथ प्रोफाइल लाइट्स, उसके ऊपर ये शो पीसेस, ये आर्ट इफेक्ट्स लाइट्स और ये फुल एक कंफर्टेबल ड्रेसिंग टेबल फुल मिरर के साथ। ये 2 फुट का मिरर डाला, यहाँ पे कंफर्टेबल सिटिंग, ड्रावर्स डाला ओजोन फिटिंग्स का और यहाँ पे अपना स्विचेस मोबाइल चार्ज करने के लिए। ये एक छोटा रूम है, 3 BHK में ये फर्स्ट रूम है लेकिन स्पेशियस रूम है, तो इसलिए हमने बेड को ये साइड किया, AC पैनल्स किया। पैनल्स में छोटा था इसलिए हमने जो शीट था 8/4 का, तो उसमें कट करने के बाद जो गैप बचता है तो हमेशा लाइंस दिखता है, तो उसको हमने अभी टी पट्टीज लगाना चालू किया। POPs बनाया विथ प्रोफाइल लाइट्स, GM का लाइट्स डाला, 2 ईयर्स और 1 ईयर का वारंटीज में आता है, स्मॉल लाइट्स। और ये बेडरूम बेड को हमने ये साइड किया तो ये स्पेस अपने को मिला, ये टी शेप अपने को स्पेस मिला। हमारा बेड में इतना स्टोरेज है जितना वार्डरोब में अपना स्टोरेज है। हाइड्रोलिक बेड्स है, 2 ईयर्स ऑफ वारंटी है, इजी टू ओपन इजी टू क्लोज है, मैक्सिमम स्टोरेज है यहाँ पे, फुल स्टोरेज यहाँ पे मिलता है जितना वार्डरोब में, इजी टू ओपन इजी टू क्लोज है। अभी ये साइड में छोटा रूम था इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, बेड वो साइड लिया तो ये आपको ये शेप मिला और वो शेप मिला, तो ये टी शेप हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश किया, तो स्पेशियस स्पेस मिला बेड वो साइड करने के बाद। हमने ये प्रीमियम हेडबोर्ड्स बनाए, आर्टिफैक्ट्स लगाए, जैसा मैंने यूरोपियन के ऊपर प्रोफाइल लाइट्स दिया वहाँ पे हमने एक फ्लोटिंग पैनल्स दिया, फ्लोटिंग पैनल्स विद प्रोफाइल लाइट्स दिया, आर्टिफैक्ट्स ऊपर रखने के लिए। डोर्स का सबका सनमाइका का चेंज किया, डोर्स न्यू बनाया, वाटरप्रूफ डोर्स है, मरीन फ्लश डोर्स हमने डाला ब्रांड्स में।
ब्रांडेड हैंडल्स विद लॉक, डोवे सनमाइकास विद टी पट्टीज। ये फुल थीम, जैसा मैंने हॉल में थीम डाला था, ये सेम थीम हमने यहाँ पे डाला। यहाँ पे वार्डरोब्स बनाने के लिए हमने यहाँ पे डुअल कॉम्बिनेशन ऑफ टीज डाला और ये टी पट्टीज डाला। हाइड्रोलिक्स में हमने इनसाइड भी हमने फुल बॉक्स बनाया। हमने सिर्फ ये आगे का फ्रेम्स नहीं डाला, फ्रेम्स डालने से बाद में कंप्लेंट्स आता है हाइड्रोलिक्स में, तो हमने यहाँ पे फुल अंदर बॉक्स बनाया, बॉक्स में हाइड्रोलिक्स लगाया। हाइड्रोलिक्स का 2 इयर्स का वारंटीज है, तो ये हाइड्रोलिक्स कभी भी खराब हो तो यू कैन रिप्लेस। यहाँ पे हमने ब्रांडेड हैंडल्स लगाया, तो ये मजबूती के लिए और इसके लिए फुल बॉडी फुल बॉक्स अंदर बनाया और हाइड्रोलिक्स बना के लिए वार्डरोब्स बनाया। वार्डरोब्स का जो डोर है वो 25 mm का डोर है, फुल्ली वाटरप्रूफ डोर्स है। और जो सनमाइका लगाया वो है प्रीमियम ब्रांडेड सनमाइकास। एसेसरीज लगाया, टी पट्टी लगाया, लॉक्स दोनों साइड्स लगाया। अंदर भी हमने यहाँ पे फुल लॉक सिस्टम दिया है, कस्टमाइज शेल्स और कस्टमाइज ड्रावर्स एज पर द कस्टमर्स करने की कोशिश किया। ये फुल जो सेट दिया, आपने थीम दिया, हमने डबल कॉम्बिनेशन कलर्स में करने की कोशिश किया। ये वन थीम करने की कोशिश किया। यहाँ पे जो बाथरूम है, बाथरूम में भी हमने यहाँ पे हमने ये फुल बाथरूम में ऐसा डोर्स बनाया। यहाँ पे नीचे एक बॉक्स बना के नीचे प्रोफाइल लाइट्स दिया। ये बेसिन के ऊपर का डोर्स बनाया जो यूजेबल है, और यहाँ पे स्टोरेज बनाया। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरेज है रूनावल गार्डन्स के बाथरूम में, जो हमने फुल स्टोरेज यूनिट बनाया। और यहाँ पे भी हमने मस्कीटो नेट्स बना के लिया, सब जगह सब फुल फ्लैट में हमने मस्कीटो नेट्स डाला, जिंदाल कंपनी का मस्कीटो नेट्स डाला, फुल यूजेबल और ड्यूरेबल। अभी जब हम घर से बाहर से आते हैं तो हमको यूज्ड क्लोथ लगता है, जो उसका स्मेल आ सकता है, तो हमने स्मेल आने के लिए ये सब वार्डरोब्स में, ये 3 BHK में अभी न्यू वार्डरोब जो हम रोशन इंटीरियर्स बनाता है, तो सब में हमने ये एक्स्ट्रा बॉक्स बना के उसमें एक्स्ट्रा शेल्फ्स दिया। तो ये यूज क्लोथ के लिए जो बाहर से आके हम लोग स्मेल नहीं करना चाहिए, स्मेल आएगा तो वो ऑटोमेटिक सूखना चाहिए, इसके लिए ये बॉक्सेस बना के लिया। तो ये बहुत यूजेबल है। तो सब वार्डरोब्स पे हमने एक्स्ट्रा बॉक्स विद ये बनाने के लिए। और ये वन थीम, ये जो फुल एक छोटा रूम है लेकिन हमने बेड एक साइड में लेके ये फुल प्रोफाइल फ्लोटिंग पैनल्स देके एक वन थीम बनाने की कोशिश की। अभी ये आता है सेकंड बेडरूम। अभी यहाँ पे हमने डोर्स का सनमाइका चेंज किया, ये एक डिफरेंट थीम दिया। यहाँ पे ग्लॉसी सनमाइका हमने यहाँ पे यूज़ किया, फ्लूटेड सनमाइका यहाँ पे यूज़ किया, टी पट्टीज यूज़ किया, फ्रेम्स में हमने वाटरप्रूफ प्लाइस लगाया सबने। यहाँ पे डोर्स का आपने थीम देखा रहेगा, तो डोर्स का थीम्स यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज करने के लिए स्पेस था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज विद हाइड्रोलिक्स किया। प्रोफाइल लाइट्स लगाया, एसीज का पैनल्स करके एसी पैनल्स किया, जो गैप्स था वहाँ पे टी पट्टी यूज़ किया। और ये यूरोपियन वॉल यहाँ पे एक फुल एक सेट बनाया, तो यहाँ पे हमने उसको लाइट्स को आर्ट इफेक्ट्स दिया। ये एक ब्यूटीफुल लुक आ रहा है यहाँ पे ये एक सेकेंड बेडरूम का फुल सेट में। तो यहाँ पे हमने फ्लोटिंग पैनल्स, कर्टन पैनल्स, पीओपीस, प्रोफाइल लाइट्स, यूजेबल क्लोथ्स, कस्टमाइज वार्डरोब, सिटिंग। और यहाँ पे सबसे यूनिक नेक्स्ट मतलब यहाँ पे मिरर नहीं था, तो यहाँ पे हमने पुल आउट मिरर यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे फुल मिरर्स डाल के एक पुल आउट मिरर यहाँ पे ये रूम में हमने स्पेशल बनाने की कोशिश किया। यहाँ पे कर्टन्स पैनल्स है जो अभी रेगुलर से ही हमारा इसमें, तो ये फुल एक डिफरेंट सेट और डिफरेंट थीम करने की कोशिश किया। अभी यहाँ से हम एंटर करते हैं, तो फर्स्ट ये एंटर करते समय हमने एक फुल मिरर बनाया, 6 mm का क्वालिटी और 2 फुट का मिरर ये डाला, सॉफ्ट क्लोजर्स डाला यूजेबल डोर्स के लिए। ये फुल एक डिफरेंट थीम जो यहाँ पे हमने एक ब्लू कलर और एक क्रीम कलर का थीम दिया है, तो हमने ये वॉल को यूरोपियन मोल्डिंग्स डाल के यहाँ पे ये थीम देने की कोशिश किया। और ये फुल एक मिरर, यहाँ से हमने कर्टन पैनल विद टी पट्टीज, पीओपीस विद प्रोफाइल लाइट्स एंड स्पॉटलाइट्स। यहाँ पे स्टार्ट से हमने यहाँ पे फुल एक कुशन लगाया, एक्स्ट्रा लॉफ्ट बनाया विद प्रोफाइल लाइट्स, विद भगवान के लिए स्पेस बनाया। यहाँ पे क्लॉक्स लगाया, बेड्स का हमने फुल प्रीमियम बेड्स ये हमने यहाँ पे सब जगह राउंड्स किया। ये इजी टू ओपन इजी टू क्लोज है। हमारा बेड का स्पेशलिटीज क्या है, हाइड्रोलिक्स डाला है, ओजोन फिटिंग्स का। ये जो बेड्स है हम प्रीमियम बेड्स और लॉट्स ऑफ ऑर्डर्स आता है इसका, ये डबल 18 mm का प्लाइस डाला है चारों तरफ से। ये डालने से बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जो हाइड्रोलिक को सपोर्ट देता है वो डबल प्लाइस डाल के देता है। और ये प्लाइस सब वाटरप्रूफ है, फुल मरीन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड हमने वाटरप्रूफ प्लाइस डालते हैं सब साइड्स में। ये प्रीमियम विद एफोर्डेबल में हम लोग सबसे मजबूती फ्लैट का पूरा जगह यहाँ पे प्लाई का काम होता है, तो प्लाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं फुल वारंटी के साथ।
तो यहाँ पे ये वार्डरोब्स का स्पेस है, जितना स्पेस अपना बेड में दिख रहा है वहाँ पे वार्डरोब्स में दिख रहा है। ईजी टू ओपन, ईजी टू क्लोज। यहाँ पे हमने वार्डरोब्स बनाए, प्रीमियम वार्डरोब्स लॉक के साथ, न्यू टेक्सचर सनमाइका साथ, ग्लॉसी सनमाइका, डुअल कम्युनिकेशन, टी पट्टी, हाइड्रोलिक्स बॉक्स बना के हम लोगों ने ये फिट किया। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाया, ये साइड में भी हमने एक्स्ट्रा पैनलिंग्स किया। ये हमारा पुल आउट पर्दे हैं और ये फुल एक सेट में यहाँ से भी जाने के लिए जगह है। वहाँ पे ये यू शेप हमने यहाँ पे जगह कोशिश किया बनाने का। तो ये फुल एक थीम हमने बनाने की कोशिश किया ये थर्ड रूम में रूनावल गार्डन्स का। थैंक यू।